Hello, welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, our commenter Pawan Bharadwaj welcomes you. This is our JEE main series. Here we are solving of question paper 26 Feb shift 1. This is our third video. Hope आपने हमारे पहले दो videos देखे होंगे, right? आइए start करते हैं. Now, if A is a symmetric matrix of order 2 and the sum of diagonal elements of A square is 1, the elements of the matrix are integer, then number of such matrices are how many such matrices? Now student, they are saying that A is a symmetric matrix of order 2. So we can say A as A, B, B, C. What do you mean by symmetric matrix? Right? This is first row, first column, second row, second column, first row, second column and second row, first row. These two elements should be same. Same होना चाहिए, right? Now here I need A square. How to find shortcut method for A square? This is A square plus B square. This will be C square plus this B square. Then A into B plus B into C. So AB plus BC. This is AB plus BC. Right? Now they are saying that the element of matrix are integers. They are in the sum of diagonal elements of A square. Which are diagonals? These are diagonals. Means A square plus B square plus C square plus B square. Sum of diagonals of A square is 1. I have written. So this is A square plus 2B square plus C square is equal to 1. ठीक है. Now they say the elements of matrices are integers. मतलब A, B, C are integers, right? Now total is 1. Obviously being A square, B square, C square negative तो हो ही नहीं सकता है. अब टोटल 1 है तो पॉसिबिलिटीज आइए हम लोग एक टेबल बनाते A, B, C. नाउ स्टूडेंट मान लो अगर सब के सब जीरोज है पॉसिबल नहीं है. मान लो A का वैल्यू 1 है, सब इंटीजर्स ही है, हम लोग फ्रैक्शन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि एलिमेंट्स A, B से इंटीजर्स. सपोज A हमने 1 ले लिया, अब B 0, C 0 आ जाएगा. अब A 0, B 1 और C 0 ऐसा ले नहीं सकते. क्यों? अगर आपने A को 0 लिया, C को 0 लिया और B को 1 लिया तो LHS RHS मैच नहीं होता है, तो ये वाला कंसिडर नहीं कर सकते. अब अगर आपने ये 0 है, ये 0 है, ये 1, हाँ ऐसा हो सकता है. देखो आप ये 0, ये 0, ये 1, यस. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ये -1 है, ये 0 है, ये 0 पॉसिबिलिटी, या 0 0 -1 बराबर. तो 1 possibility, 2 possibility, 3 possibilities and 4 possibility. So how many such possibilities are there? There are 4 possibilities. So how many different type of these matrices we can have? This one, option 1, that is 4 matrices, right? और कोई इंटीजर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप बोलोगे सर 2 यूज करेंगे, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आंसर तो 1 आएगा ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट सम. The maximum value of slope of a tangent to y. अब मैक्सिमम वैल्यू बोला है, किसका मैक्सिमम वैल्यू? नॉट डी वाई बाई डी एक्स का. यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स सोचते y का मैक्सिमम वैल्यू. नहीं, इन लोगों ने स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू बोला. तो स्लोप क्या होता है पहले सबसे पहले? सपोज दिस इज y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 अपॉन 2 माइनस 5
एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 6। अगर आप dy बाई डी एक्स फाइंड करते हो तो दिस इज dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x क्यूब अपॉन 2, this will be 15x square, this will be 36x, 2 1 times 2 2 times, this will be slope of tangent, we can say m, so m is 2x cube minus 15x square plus 36x। अब ये जो m है इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dm by dx, it will be 6x square minus 30x plus 36। सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, d2m by dx square will be 12x minus 30। ठीक है, अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 6x square minus 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 6 किया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 x का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू 3 पे चेक करो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 12 3 जा 36, 36 माइनस 30 पॉजिटिव आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव चेक करो, 12 24 माइनस 30 माइनस 6 नेगेटिव आ रहा है। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू, तो सीधी बात है ये राइट ऑप्शन है, तो मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है, x तो 2 आ गया, y कैसे फाइंड करेंगे, सीधी बात है ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आ जाएगा। आइए चेक कर लेते, चलो फटाफट, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x रेज टू 4, तो 2 रेज टू 4 मतलब 16, 16 अपॉन 2 मतलब 8, माइनस ये क्या स्टूडेंट 2, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 5 40, दिस इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 18 इंटू 4 72 प्लस 6, चेक कर लो 72 प्लस 8 80 हो गया, माइनस 34 6 और 46, तो y कितना आ गया 46, तो पॉइंट्स क्या आ गया देखो यहाँ पे दिख रहा है 2,46। ओके, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, राइट, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, नहीं ये तो dy बाई डी एक्स है, तो स्लोप है, अब ये फंक्शन बना हमारा, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखो जो मैंने डबल टिक किया इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब ये हमारा फंक्शनल फॉर्म है m इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए मैं डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वहां पे a दिया हुआ है, ऑब्वियसली a कैन बी एनी रियल नंबर, एज्यूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जनरली इसके ऑब्वियसली इसके मेथड्स, एक्सटेंडेड मेथड्स हैं इसके, यहाँ पे आपको r1 माइनस r2 r2 माइनस r3 करना है, बाद में एक्सपेंशन करना है, आंसर आ जाएगा। पर सिंस दिस इज MCQ, अगर आपने हमको फटाफट करना, और अगर हमने a का वैल्यू 0 एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा, सोचिए सबसे बेस्ट मेथड है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 0 प्लस 2 मतलब 1 इंटू 2 आ जाएगा, ये 1 ये 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6, क्योंकि a का वैल्यू 0 एज्यूम किया, ये 2 ये 1, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 12, ये 3 ये 1, ठीक है। एक्सपेंशन कर लेते कितना, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 1 18 माइनस 24, 18 माइनस 24 माइनस 6, आ जाएगा माइनस 2 प्लस 6 माइनस 6। आप बोलोगे सर तो बहुत सिंपल हो गया, यस राइट, माइनस 2 द आंसर, सिंपल हो गया देखो, जबकि एक्चुअली चे डबल ई सम, मैंने क्या है a का वैल्यू एज्यूम कर लिया 0, आप लोग सर 0 के अलावा सपोज मैंने 1 एज्यूम किया तो भी चलता, लेकिन सबसे कंफर्टेबल 0 ही है। Now this is
we have sin inverse x upon a is equal to cos inverse upon b is equal to tan inverse y upon c. अच्छा स्टूडेंट अगर इसको मैं ऐसा ले sin inverse x upon a is equal to cos inverse x upon b is equal to tan inverse y upon c is equal to some constant k. तो सोचो sin inverse तो a क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा सोचो sin inverse x upon k. b क्या हो जाएगा cos inverse x upon k और c क्या हो जाएगा पूछा क्या देखो ये रहा cos pi c upon a plus b तो cos pi into c का वैल्यू क्या है सोचो tan inverse y upon k a plus b कर देंगे a plus b डिनोमिनेटर से में k तो आ जाएगा sin inverse x plus cos inverse x upon k. Now this k and this k cancels, so we have cos pi tan inverse y. What is sin inverse x plus cos inverse x? Pi by 2. तो pi and pi cancel, तो क्या आ गया cos twice tan inverse y. Now student, is a very standard result. What is standard result? What is 2 tan inverse of x? चलिए तो लिख देता हूँ आपके लिए, आपने पढ़ा हुआ है थियरी में 2 tan inverse of x in terms of cos is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square with certain conditions. फिलहाल उस कंडीशन को अज्यूम कर लेंगे बिकॉज डेटा में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा देखो cos विथ सेम लॉजिक क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square. तो आंसर क्या आ गया सोचो 1 minus y square upon 1 plus y square. तो ऑप्शन क्या दिखता है अपने को 3. राइट स्टूडेंट राइट. कम फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now before that आइए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ. सपोज आपका आता है ए बार क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. सिंपल, पहले दूर वाले से स्टार्ट करने का. ए बार डॉट सी बार बी बार माइनस, अब नजदीक वाले से डॉट लेने का. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. यस, अभी फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक, देखो अभी क्वेश्चन क्या है ए बार क्रॉस ए बार. चलिए हम रंग से ब्रैकेट बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज ए बार क्रॉस बी बार. ठीक है. एक मिनट, 1 2 3 4 बराबर. चलिए ठीक. आई थिंक एक और कंडीशन इसमें देना चाहिए था कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. आई थिंक नहीं, देख लेते हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी अब मैंने आपको डिस्कस किया है. तो क्या आएगा सोचो ए बार दूर वाला पहले ए बार डॉट बी बार ए बार माइनस ए बार डॉट ए बार दिस इज बी बार. हम जानते हैं ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. दिस इज गिवन डेटा, ध्यान रखो स्टूडेंट. हमने नहीं लिखा है,
ध्यान रख लीजिए, इट इज ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, तो मतलब ए बार डॉट बी बार इज 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, 0 इंटू ए बार, 0 ए बार। व्हाट इज ए बार डॉट ए बार, मॉडुलस ऑफ ए बार का स्क्वायर एंड दिस इज बी बार। अब क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार माइनस मॉडुलस ऑफ ए बार बी स्क्वायर, 0 तो कोई मतलब नहीं, ये माइनस मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर तो स्केलर है, आइए इसको बाहर कर देते हैं, माइनस मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर। ठीक है, ए बार क्रॉस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बाहर चला गया, कर सकते हैं ऐसे, दिस इज बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार यही था स्टूडेंट, बराबर वापस वही, तो क्या लिख देंगे, ऑलरेडी ये भी है टर्म, ध्यान रखना ये टर्म है यहाँ पे, ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार माइनस ए बार डॉट ए बार, और ये टर्म भी है, ध्यान रखो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, है ध्यान रखो, कौन सा टर्म, ये टर्म बाहर जो हमने कॉमन लिया था। अब ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ए एंड बी परपेंडिकुलर, जो खत्म, ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर, राइट, this minus and this minus become plus, तो ये मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर, ये भी मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रेज टू 4 बी बार। ठीक है, चेक कर लीजिए स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार लिखा, राइट, तो इसका आंसर कितना आ गया था, ए बार डॉट बी बार 0, राइट, माइनस ओके, अब ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं,